ലോക്സഭയിൽ തന്റെ കന്നി പ്രസംഗത്തിൽ ബി.ജെ.പിയെയും അമിത്ഷായെയും അദാനിയെയും നമ്മളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും എടുത്തിട്ട് അലക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നത്തെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ പാർലമെന്റിൽ പോയി സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയില്ല. അതുപോലെ വർഷങ്ങളായി പാർലമെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാള് വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഏകാധിപത്യ ഭരണം ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ കാണിച്ച ധൈര്യം സമ്മതിച്ചേ മതിയാകൂ. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അതേ ധൈര്യം, അതേ വാക്ചാതുര്യം ഇതെല്ലാം ഒത്തുണങ്ങിയതുപോലെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും. ചുരുക്കത്തിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭരണഘടന ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ കവചമാണെന്നും ഭരണകക്ഷിയായ ബി.ജെ.പി അതിനെ തകർക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ പരിഹരിക്കാൻ ബാലറ്റിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക, അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ സത്യം വെളിപ്പെടും എന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭരണഘടന നീതിയുടെയും ഐക്യത്തിന്റെയും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും എല്ലാം സംരക്ഷണ കവചമാണ്. അത് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു പിടിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദുഃഖകരമെന്ന് പറയട്ടെ, 10 വർഷമായി ഭരണകക്ഷി ആ കവചത്തെ തകർക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പേരെടുത്ത് പറയാതെ തന്നെ ഗൗതം അദാനിക്ക് ബി.ജെ.പിയുമായി അവിശുദ്ധ ബന്ധമുണ്ടെന്നും രാജ്യത്തെ 142 കോടി പൗരന്മാരെ തള്ളി ചില വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ബി.ജെ.പി സർക്കാർ നിലകൊള്ളുന്നതെന്നും 142 കോടി ഇന്ത്യക്കാരെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് രാജ്യം കാണുകയാണെന്നും ബിസിനസ്സുകൾ, പണം, തുറമുഖങ്ങൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, ഖനികൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഒരാൾക്ക് മാത്രമായി നൽകുന്നു. അദാനിയും ബി.ജെ.പിയും അതുപോലെ തന്നെ മോദിയും അമിത്ഷായും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിനെയാണ് ഈ തുറന്നു കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ഭരണകക്ഷിയായ എൻ.ഡി.എ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ അടിച്ചമർത്താൻ അവർക്കെതിരെ കള്ളക്കേസുകൾ ചുമത്തുകയാണെന്നും അദാനിക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ എല്ലാം അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്നും അതിനോടൊപ്പം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. 142 കോടി ഇന്ത്യക്കാരെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളെ മാത്രം ബി.ജെ.പി സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുന്നത് രാജ്യം കാണുന്നുണ്ട്. രാജഭരണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ബി.ജെ.പി ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ജനങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുപോലെയുമാണ് ഇപ്പോൾ പെരുമാറുന്നതെന്നും ഒരു ഏകാധിപത്യ ഭരണമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുമാണ് പറഞ്ഞത്. ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഏകാധിപത്യ ഭരണമാണെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയും സംസാരിച്ചിരുന്നു. കർഷകർ രാജ്യത്ത് ഒറ്റപ്പെടുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കർഷകർ ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ജീവിച്ചു പോകുന്നതെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു ആ പ്രസംഗത്തിൽ. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ഈ പ്രസംഗം ഇവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്കത് കേൾക്കാം. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അത് കൃത്യമായിട്ടും എല്ലാവരും ഇരുന്ന് അത് സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ കത്തിക്കയറി എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്നാലും നമുക്ക് ആ പ്രസംഗം ഒന്ന് കേൾക്കാം. दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में ये सुरक्षा कवच सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है. संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है. ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है. लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है. अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते. सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी. इस चुनाव में हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी. आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो. सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया. ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए. ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने. इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए. इनका जवाब भैंस चुरा लेंगे,
मंगलसूत्र चुराएंगे? इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। महोदय, हमारे संविधान ने आर्थिक न्याय की नींव डाली, किसानों, गरीबों और को जमीन बांटी, भूमि सुधार किया, जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश में से कभी मिटाया नहीं जा सकता। 75 सालों में जनता का भरोसा रहा कि नीतियाँ बनेंगी तो जनता की भलाई के लिए बनेंगी। जल जंगल जमीन का अधिकार मिला आदिवासी भाई बहनों को। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, खदानों का राष्ट्रीयकरण कराया। कांग्रेस और यूपीए की सरकारों में शिक्षा का, भोजन का अधिकार मिला। 75 सालों में जनता का भरोसा मिला। पहले संसद चलती थी तो जनता की उम्मीद होती थी कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेगी, कोई उपाय निकालेगी, कोई रास्ता निकालेगी। लोग मानते थे कि अगर कोई नई आर्थिक नीति बनेगी तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, तो भारतीय बाजार को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बनेगी। किसान और आदिवासी भाई बहन भरोसा करते थे कि यदि ज़मीन के कानून में संशोधन होगा तो उन्हीं की भलाई के लिए होगा। आप नारी शक्ति की बात करते हैं। आज चुनाव की वजह से शायद इतनी बातचीत हो रही है नारी शक्ति के बारे में, क्योंकि हमारे संविधान ने महिलाओं को ये अधिकार दिया, उनकी शक्ति को परिवर्तित किया वोट में। और आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि महिलाओं के बिना, कि नारी शक्ति के बिना ये सरकारें नहीं बन सकती हैं। इसीलिए आज आप नारी शक्ति की बातें दोहरा रहे हैं। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? क्या बात है, क्या बात है। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज़्यादा से ज़्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है? कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही MSP को छोड़िए, DAP तक नहीं मिल रहा है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो उसको कोई राहत नहीं मिलती। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया है। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं
वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। मैं अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए हैं। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदानें, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा, मगर आज आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। देश में बहुत तेजी से गैर बराबरी बढ़ रही है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। इस सरकार ने आर्थिक न्याय की भी सुरक्षा कवच तोड़ दिया है। राजनीतिक न्याय की जब बात होती है, मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, 1975 में जो हुआ, तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। मेरा आग्रह है कि अपन संविधान में सकारात्मक बोले। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने एक उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश की सरकार का, तो मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ महाराष्ट्र की सरकार का। मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की, पैसों के बल पे की, गोवा की सरकार। तमाम उदाहरण राजस्थान की। क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। जो यहाँ से वहाँ जाता है वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां भाईचारा और अपनापन होता था, जहां हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा कवच दिया था, वहां शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। एकता का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है
उठती है तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है। दरअसल इनका कहना है कि अलग अलग इस देश के अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि ये देश एक है और ये देश एक रहेगा। जहां खुला विवाद होता था, अभिव्यक्ति का सुरक्षा कवच होता था, इन्होंने भय का माहौल पैदा किया है। सत्ता पक्ष के मेरे साथी अक्सर 75 सालों की बात करते हैं, लेकिन इन 75 सालों में ये उम्मीद, आशा, ये अभिव्यक्ति की ज्योति कभी थमी नहीं, कभी बुझी नहीं। इस देश की जनता ने खुलकर आलोचना की, निडर होकर धरने किए, प्रदर्शन किए। जब जब जनता नाराज हुई तब तब सत्ता को ललकारा, उसे चेतावनी दी, बड़े से बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा किया, उनसे जवाब मांगा, न्याय मांगा। इस देश के छोटे छोटे से नुक्कड़ की दुकानों में, चाय की दुकानों में, इस देश के घरों में, गलियों में, मोहल्लों में, अखबारों में, प्रकाशन घरों में, न्यायपालिकाओं में चर्चा कभी बंद नहीं हुई। लेकिन आज ये माहौल नहीं है। आज जनता को सच बोलने से डराया जाता है, धमकाया जाता है। पत्रकार हो या विपक्ष का नेता हो या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, छात्र संघ हो या कर्मचारियों का संगठन हो, सबका मुंह बंद कराया जाता है। किसी पे ईडी, किसी पे सीबीआई, किसी पे इनकम टैक्स, फर्जी मुकदमे लगवाए जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनको सताया जाता है। किसी को नहीं छोड़ा इस सरकार ने। देशद्रोही कह के उत्तर प्रदेश में मुझे याद है कुछ अध्यापिकाएं प्रदर्शन कर रही थी, उन पर मुकदमा डाल दिया देशद्रोही का, उन्हें देशद्रोही कह दिया। इन्होंने देश का पूरा माहौल भय से भर दिया है। इनकी मीडिया की मशीन झूठ फैलाती है, तरह तरह के आरोप लगाती है, और शायद वह भी भय में ही है। महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी की विचारधारा वाले लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ साठ-गांठ कर रहे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भय का भी अपना स्वभाव होता है। भय फैलाने वाले हमेशा भय का खुद शिकार बन जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। आज इनकी भी यही हालत हो गई है। भय फैलाने के इतने आदी हो गए हैं कि खुद भय में रहने वाले हैं। चर्चा से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं। कई दिनों से हम मांग रहे हैं कि चर्चा करिए, लेकिन चर्चा करने की हिम्मत ही नहीं है। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का,
लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। महोदय, मैं तो सदन में नहीं हूं। महोदय, जनता में बहुत विवेक है, ये सही है। अच्छा महोदय, मैं सदन में नहीं हूँ। कुछ हाँ ठीक है, मैं सदन में नहीं हूँ, मात्र 15 दिनों से आ रही हूँ। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इन 15 दिनों में इतनी बड़े इश्यूज हैं, इतनी बड़ी बातें हैं, प्रधानमंत्री जी मात्र एक दिन के लिए शायद 10 मिनट के लिए दिखे हैं सदन। बात यह है अध्यक्ष महोदय जी कि ये देश भय से नहीं, साहस और संघर्ष से बना है। इसको बनाने वाले देश के किसान, जवान, देश के करोड़ों मजदूर और गरीब जनता है। संविधान इनको साहस देता है। मेहनती मिडिल क्लास है और इस देश के जो करोड़ों देशवासी हैं, जो रोजाना भयंकर परिस्थितियों का सामना करते हैं, उनको साहस देता है। वायनाड में जो आपदा आई, उसमें एक छोटा लड़का था 17 साल का। 6 घंटों के लिए उसने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की। 6 घंटों के लिए आप सोच सकते हैं कि अगर नदी की धारा बह रही है, नाराज है, आप अपनी माँ को पकड़े हो, 6 घंटों के लिए पकड़े रखते हो कि मेरी माँ बच जाएगी और अंत में वो माँ भी बह जाती है। उस लड़के का साहस, उन महिलाओं का साहस जो पीड़ित हैं लेकिन फिर भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन संभल के बच्चों का साहस जिनके पिताजी अभी गुजर गए लेकिन फिर भी उनके सपनों को साकार करने की हिम्मत है, उनका साहस है। वो साहस से संविधान ने दिया है। वो आत्मविश्वास से संविधान ने दिया है। ये देश भय से नहीं चल सकता, ये देश साहस से ही चलेगा। भय की भी सीमा होती है और जब वो सीमा पार हो जाती है, जब किसी को इतना दबाया जाता है कि उसको लगने लगता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। जय हिंद। ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയെ വരെ എഴുതി മാറ്റാൻ BJP തയ്യാറായി നിൽക്കുകയായിരുന്നെന്നും എന്നാൽ ജനങ്ങൾ അതിന് സമ്മതിച്ചില്ലെന്നും ഇപ്രാവശ്യം ജനങ്ങൾ അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഇലക്ഷൻ വഴി കൊടുത്തതെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിലെടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന് വരെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ ഇലക്ഷൻ നടന്നാൽ സത്യം വെളിയിൽ വരും, ആരുടെ കൂടെയാണ് ജനങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ബാലറ്റ് പേപ്പറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ള ഒരു സമരം ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. പലയിടങ്ങളിലും അതിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി അതിനെതിരെ സമരം നടക്കുന്നുണ്ട്. ബാലറ്റ് പേപ്പർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ഇന്നത്തെ ആ പ്രസംഗം, പാർലമെന്റിലെ പ്രസംഗം, പല കാര്യങ്ങളും മോദിക്കെതിരെയും അമിത്ഷായ്ക്കെതിരെയും അംബാനിക്കെതിരെയും അദാനിക്കെതിരെയും എല്ലാം കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രസംഗം തന്നെയായിരുന്നു. അതുപോലെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള, കൃഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള, കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള, അതുപോലെ വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പീഡിതർക്കായി സംസാരിച്ച പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉള്ള സാഹചര്യം, ഭരണ സാഹചര്യം ഇതെല്ലാം വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സംസാരിച്ചത്.
എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം.